معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم گزشتہ 54 دنوں سے اسلام آباد میں انصاف کی تلاش میں بیٹھے ہیں، وہ انصاف جو بلوچستان سے غائب ہے۔ اسی انصاف کے لیے ہمیں سینکڑوں میل دور اپنے گھروں سے آنا پڑا۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں ریاست کا ہر ادارہ ظالم دکھائی دیتا ہے اور جواب دہی سے بالکل مبرا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو دن دہاڑے عوام پر ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ ان اداروں کی نہ تو کوئی مؤثر نگرانی ہے اور نہ ہی ان کے انصاف کا کوئی نظام۔ عدالتیں جو انصاف کی آخری امید ہوتی ہے، خود کو اداروں کے سامنے بے بس پاتی ہیں۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں جبری گمشدگیاں پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی۔ اس کے برعکس آئے دن درجنوں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صرف سال 2025 کے پہلے 8 ماہ میں 1000 سے زائد جبری گمشدگیوں کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ان گمشدگیوں کے خلاف ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ پرامن تحریک چلا رہی ہے، آج خود ریاستی جبر کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے رہنماؤں کو نہ صرف قید کیا گیا ہے بلکہ بعض کو خود جبری گمشدگی کا سامنا ہے۔ مارچ میں جعفر ایکسپریس کے واقعوں کو بہانہ بنا کر ایک منظم کارروائی کے ذریعے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ آج تک عدالتیں ان پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکی اور نہ ہی انہیں انصاف دیا گیا۔ اور ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان رہنماؤں کو جیل میں رکھا جائے۔ پہلے 3 ماہ 3MPO جیسے کالے قانون کا سہارا لیا گیا اور اب ہر پیشی پر بغیر کوئی رپورٹ پیش کیے CTD محض ریمانڈ کی درخواست دیتی ہے اور عدالتیں بنا کوئی سوال کیے ریمانڈ دے دیتی ہیں۔ ہمارے وکلاء بارہا پوچھ چکے ہیں کہ گزشتہ ریمانڈ کی رپورٹس کہاں ہیں، لیکن عدالتیں CTD سے جواب طلب کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی۔ پچھلے 2 سالوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر پرامن احتجاجات اور ویڈیو بیانات کی بنیاد پر درجنوں FIR درج کی گئی ہے، جن میں کئی جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ ان میں سے کئی کیسز میں متعلقہ رہنما موقع پر موجود بھی نہیں تھے۔ ان کیسز میں اب تک صرف 3 مقدمات ہیں۔ مقدمات میں عدالت نے جوڈیشل کارروائی مکمل کی ہے، جبکہ 30 سے زائد کیسز ابھی بھی باقی ہیں۔ گزشتہ پیشی میں عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، مگر کل چھٹی کے روز ربیع الاول کے موقع پر جب نیٹ بندش اور راستوں کی بندش کے باعث کوئی وکیل یا رشتہ دار پیش نہ ہو سکا تو پھر 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ ایسا سلوک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں تو وہ عام بلوچ مثلاً ایک چرواہے کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہوگی؟ کیا اس انصاف کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ معزز صافی حضرات، ہم آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے اس عالیہ بیان کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے ایک بار پھر من گھڑت الزامات کا سہارا لے کر ہم پر زہر افشانی کی ہے۔ ہم ان الزامات کو محض سیاسی بیان بازی نہیں سمجھتے بلکہ اس گہری نفرت کا اظہار ہے جو ریاست کی جانب سے بلوچ قوم کے ساتھ برتی جا رہی ہے، وہی نفرت جو ایک آقا اپنے نافرمان غلام کے لیے رکھتا ہے۔ اگر ریاست کی عدالتیں واقعی بااختیار ہوتی تو ہم ان الزامات کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، ثبوت مانگتے کہ ہمارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ہم کب کہاں کس قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان مطالبات کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنے ہی اداروں سے باز پرس کرنے سے قاصر ہے۔ یا تو وہ بے بس ہے یا وہ خود بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کر کے ہم پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے۔ وہ خود اپنی ایجنسیوں کے سامنے بے بس ہے اور جو ہم بلوچستان سے سینکڑوں میل دور آئے ہیں
54 दिनों से पुरअमन धरने में बैठे हैं और आज रियासत के इल्जामात का निशाना बन रहे हैं। ये सब रियासत और उसके अदारों के लिए एक शर्मिंदगी है। ये बदनुमा दाग इन अफराद के माथे पर होगा जो खुद को जमहूरियत का आलमबरदार कहते हैं, मगर ना हमारी सुनवाई के लिए आते हैं, ना कोई इंसाफ देते हैं, सिर्फ मीडिया में खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए बोहतान तराशी करते हैं, अवाज़िया करते हैं। हम पुरअमन एहतजाज जारी रहेंगे। हम पुरअमन तौर पर अपनी जिंदगी, शिनाख्त और इंसाफ की हक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और जितना तवील ये एहतजाज चलेगा उतना ही शर्मिंदगी इन अदारों के हिस्से में आएगा। शुक्रिया। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मारंग बलोच साहबा को अदालत में पेश किया और 5 रोज़ का रिमांड बढ़ा दिया गया, छुट्टी वाले दिन उनको अदालत में पेश कर आपको जो 54 दिन हो गए हैं, तो क्या पैगाम दिया गया है कि छुट्टी वाले दिन उनको पेश किया है कि उनके ऊपर ये धरने का कोई असर नहीं पड़ रहा? हम भी यही कह रहे हैं कि जिस दिन पेशी होनी थी, जिस दिन पेश करना था, उस दिन हमारी वकला और एहलखाना समेत 4 बजे तक कोर्ट में बैठे इंतजार किया। उस दिन उन्हें पेश नहीं किया गया और दूसरे दिन उन्हें पेश किया गया जहां पे नेट भी नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में नेट को बंद कर दिया गया था और अदालतों में वकील भी कोई मौजूद नहीं था। तो इन दिनों पेश करना ये बावर कराता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे इख्तियार में कुछ भी है। मतलब हमारा यहाँ पे धरना देना और इंसाफ की उम्मीद लगाना, हम नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं आगे, या वो जो पुरअमन या सियासी तरीक़ाकार है उसको कितना संजीदा ले रहे हैं। समीउद्दीन साहब, आपने कहा था कि हमारी 1% जो उम्मीद है अगर होगी 90% हम ना उम्मीद भी हो चुकेंगे, फिर भी हम अपना धरना जारी रखेंगे। तो ऐसे इकदामात के बाद जो आपकी 1% की उम्मीद थी उसमें अभी भी कोई किरण बाकी है? देखिए, हमने एक बात हमेशा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है और हम जो गुज़िश्ता 15 सालों से 20 सालों से इंसाफ के वो दरवाजे खटखटा रहे हैं जहाँ पे हमें उन अदालतों से, उन इंसाफ के दरवाज़ों से बार बार मायूसी मिली है। एक उम्मीद, वो उस चीज़ की उम्मीद है कि हम मुज़ाहिमत कर रहे हैं, हम इस जबर को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम रियासती इस जबर को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी उम्मीद इस जद्दोजहद में है, हमारी उम्मीद इस मुज़ाहिमत में है, हमारी उम्मीद इस चीज़ में छुपी हुई है कि हमने इस रियासती जबर को तस्लीम नहीं किया है और हम इसके खिलाफ मुज़ाहिमत कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि ये पहली दफ़ा नहीं है हम इस्लामाबाद में आए हैं। रियासत की तरफ से जो एक रवैया रखा जाता है कि जब भी हम लोग बलूचिस्तान से आए, फैमिलीज यहाँ पे इंसाफ का तवक्को लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनको खाली हाथ लौटाया जाता है। शायद रियासत की तरफ से ये गलत फहमी उनको उनके जहन में आती है कि शायद ये माएँ, ये फैमिलीज जो इंसाफ की तवक्को लिए यहाँ आए थे और वो यहाँ से वापस खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन हमने ये भी कहा है कि हम हर बार आएंगे जब भी रियासती जबर होगी, जब भी रियासती जबर अपनी इंतहा को पहुंचेगी, हम हर बार शहर इक़्तिदार से आके पूछेंगे कि वो शहर इक़्तिदार उसी GHQ से, उसी इस्लामाबाद से, उसी पार्लियामेंट से वो जो कवानीन पास होते हैं, वो जो इक़दामात, वो जो अहकामात यहीं से मिलके वो बलूचिस्तान में इस बलोच नस्ल कुशी के तसलसल को जारी रखे हुए हैं। हम आके इनसे पूछेंगे कि आप लोग क्यों कर रहे हैं बलूचिस्तान में ये सब कुछ। हम आके उनसे पूछेंगे कि वो जो माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो इंसाफ की तलबगार हैं आपसे। अच्छा, एक तो आप लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी पूछा कि हमें बताया जाए अगर आप लोग हमारे मुतालबात नहीं सुन सकते तो हम किसके सामने पेश हों। और दूसरा, आप लोगों ने ये भी जिक्र किया कि ये अपने आप को जमहूरियत का आलमबरदार कहते हैं, लेकिन आप लोग शायद ठीक नहीं है इस पे, क्योंकि आजकल वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। इस हाइब्रिड निज़ाम में, और वो फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, तो इस हाइब्रिड निज़ाम में फिर आप लोगों को भी अपना रास्ता तब्दील नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, हम पीसफुल लोग हैं, हमारे पास और क्या रास्ता है बगैर इसके कि हम पीसफुली एहतजाज करें, हम पीसफुली अपने हुकूमत बेबस है, अदालतें बेबस हैं, किसी और के सामने वो आए अपनी बेबसी का मुजाहरा करें, वो आके हुकूमत यहाँ पे बैठे हमारे साथ कहे कि हम लोग बेबस हैं, हम लोग उनसे मुतालिबात नहीं करेंगे। एक तरफ वो पूरी दुनिया के सामने ये ढोंग रचाते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, ये यहाँ पे जमहूरी निज़ाम नाफिज है, और दूसरी तरफ से यहाँ पे आमरीत का निज़ाम है। तो वो आके आज भी हमें कहें कि यहाँ पे आमरीत है, हम यहाँ से खाली हाथ वापस चले जाएंगे। लेकिन जब तक ये जो दो रूपोशी उन्होंने लगाई है, जो उन्होंने डबल फेसेस लिए हुए हैं कि एक तरफ से यहाँ पे जाबरियत का निज़ाम है
जुल्म और जबर का निज़ाम है, और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि यहाँ पे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाला फेस आपका नहीं चलेगा। आप आए हमसे कहें कि आप बेइख्तियार हैं, हुकूमत की यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट की यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से एक तरफ से आप बैठे हैं, एक आप जमहूरियत की जो है दावेदार हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। क्यों नहीं है आपके बस में? अच्छा, एक तो उन्होंने एक और भी जिक्र किया तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि ये ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो किया जा रहा है, तो उनका कुछ औरतें या कुछ लोगों के हाथ में यरगमाल हो रहे हैं, वो किस तरह की तरफ इशारा कर रहे थे, ये आप लोगों को पता चला है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई है, यहाँ पे किस किस्म की फोटोशूट और मार्केटिंग हुई है। ये यहाँ पे कोई फोटो स्टूडियो नहीं है, और यहाँ पे कोई जो है इदारे नहीं है जो यहाँ पे नशर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दर्द, वो तकलीफ लिए बलूचिस्तान से, वो जो नाइंसाफ़ी का एक निज़ाम है, हम वो दुनिया को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो जो मुक़्तदर लोग हैं उनको बताने आए कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आए हैं। मैं समझती हूँ बज़ात खुद मेरे लिए ना सिर्फ ये अफसोस का मकाम है, बल्कि ये तकलीफ दा बात है, और ये उनके लिए भी, वो जो ये बातें करते हैं उनके लिए ये एक शर्म का मकाम होना चाहिए कि यहाँ पे वो जो माएँ, यहाँ पे बूढ़ी माएँ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भीगती बारिश में वो भीग कर यहाँ पे वो जो है कांप रही हैं, यहाँ पे तपती धूप में, इस गर्मी में, वहाँ पे उनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं है। वो यहाँ पर इस गर्मी में गुज़िश्ता 54 दिनों से उन्होंने अपना एहतजाज जारी किया हुआ है। बजाय इसके कि आप अपना दस्त शफ़क़त उनके सरों पर रखें, बजाय इसके कि आप आएँ उनसे पूछें कि उनके मुतालबात क्या हैं, आप असेंबली में बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शर्म का मकाम है और कुछ भी नहीं।